Professor Shabir, co-panelists, and esteemed intelligence sitting in front of me. After two sessions of internal security, external security, I think this is a session which is a very, very generic session on culture, society, and environmental part. Though I have written my paper on internal security, but I've been told yesterday I should tell something about the culture, whatever I feel, because I am associated with so many cultural organizations in the part of J&K. I feel the moment I go to any place, I go to even, let us say, Connaught Place, ask any shopkeeper, कि भाई we are writing a national policy document, can you contribute? तो his reply will be, मेरा काम नहीं है, ये तो आर्मी, जैसे अभी मैंने सुना था, आर्मी का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस का है, हमारा काम तो नहीं है कुछ ये. बट अगर मैं उसे पूछूं कि अगर तुम्हारी सोसाइटी सेफ़ नहीं है, तुम्हारा कल्चर सेफ़ नहीं है, तुम्हारा एनवायरनमेंट सेफ़ नहीं है, क्या तुम अपने आप को सेफ़ फील करोगे? क्या तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? तो ही may have probably no answer probably, or he will not say anything. But what I feel, as I have been told, I must speak something about the culture. So before I say anything about culture, I say cultural security is also one of the parts we must adhere to, we must pay attention to. And once we talk of cultural security, we must understand what culture is. We all know culture is basically a set of some custom, tradition, whatever is going on, whatever I have inherited from my parents, that is my culture. I am from J&K, I am from Jammu region, I am a Dogra, I follow Dogra culture. So there are so many cultures because we have a set of norms, and those norms give us identity. छोटे लेवल पे it may be Jammu culture, Dogra culture, Kashmiri culture, Pahari culture, Gojri culture, but at the higher level it is a national culture. भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर. So culture is one of the parts which I feel is a very, very important part in the life of a nation. It is something like a thread which probably unites all the pearls. जितने भी मोती हैं सभी को एक थ्रेड धागा जोड़ता है, तो कल्चर वो चीज़ है जो सब जुड़ते हैं और किसी की माला बनती है, भगवान को माला चढ़ती है, ये वो थ्रेड है. तो ये कल्चर जो है, कॉमन बिलीव्स, कॉमन ट्रेडिशंस, कॉमन हमने जो सीखा है सब कुछ, वो हमारा कल्चर. बट व्हाट आई फील नाउ, द कल्चर इज गेटिंग इरोडेड. आफ्टर आई रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, आई केम बैक टू जम्मू आफ्टर 36 years of time. I was very proud of my culture. My culture was what? It was depicted by my language. I speak Dogri language. I enjoy my Dogri food. I enjoy rajma, ambal, all those food. The Dogri food, a cuisine is my culture. My dress was my culture. Looking after the parents was my culture. My youngster used to come and touch my feet. That was the culture. But once I went there, things are probably now totally different. मैं अपने ही बच्चों से बात करता हूँ डोगरी में, दे रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड. जैसे मुझे तो हिंदी और इंग्लिश ही आती है, डोगरी तो है फॉरगॉटन, तो वो बिल्कुल ख़त्म. किसी के घर में जाता हूँ खाने के लिए, तो वहाँ शायद इटली वाला पिज़्ज़ा, चाइना के मोमो एंड नूडल्स, शायद राजमा चावल इज़ एक्सटिंक्ट, कल्चर इज़ गॉन. वहाँ लोहड़ी के दिनों में जम्मू में एक लोहड़ी बनाई जाती है 13 जनवरी को. छज्जे, बहुत बड़े बड़े छज्जे बनते थे. तो नो छज्जा इज़ नोवेयर इन जम्मू. मैं आके पूरी लोहड़ी के दिन पूरे जम्मू घूमता रहा, कहीं मुझे छज्जा नज़र नहीं आया. पतंग का सीज़न, इट्स अ कल्चर कि वहाँ पतंग उड़ती है. जन्माष्टमी के दिन देयर इज़ अ टाइम व्हेन देयर इज़ अ पतंग, एवरीबडी सेलिब्रेट्स. मुझे लगा नहीं, यहाँ तो पतंगें नहीं उड़ रही कोई. पुराने मोहल्लों में शायद थोड़ी पतंगें उड़ती हैं. I stay in a colony which is newly built. So this year I decided, okay, I will have kite flying session here. तो मैंने अपने घर में सभी परिवार को इकट्ठा कर लिया, 15-20 लोग. मोहल्ले में 10-12 घरों को बता दिया कि भाई सभी पतंगे उड़ाएंगे. And we had a patang session in that corner of Sainik colony which never saw any of the patang. And that started off. And सारे बच्चे मेरे पास आ गए कि अंकल ये आप शुरू करो, हम अगले साल तो और पतंगे उड़ाएंगे. But I say this culture is one part basically. If we have these festivals, अब ये कल्चर को क्या करना चाहिए? But I say we must have this culture through the festival and common festival. कॉमन फेस्टिवल क्या करते हैं? हमें सभी को जोड़ते हैं, हम सभी इकट्ठा बैठते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, उससे हमारे अंदर पेशेंस आती है, हमारे एक दूसरे की बात जानते हैं. पर नाउ डेज इन द डिजिटल वर्ल्ड वी फाइंड, छुट्टियों में बच्चे भी घर आते हैं तो 10 लोग बैठे हैं तो शायद 10 के पास ही फ़ोन है. नोबडी इज लुकिंग एट ईच अदर, ऑल आर डिस्कनेक्टेड. Physically sitting there in the same room, all of us are disconnected. The only thing which can unite is a common festival which is part of the culture. जैसे if I feel जम्मू में बैसाखी मनाएंगे तो बैसाखी में सारे लोग वहाँ पर
Hindu, Muslim, Sikh, Isai. It's a culture. Everyone celebrates. Everyone wants to dance. Everyone wants to enjoy. हम सभी ये इकट्ठे हो गए. This is our duty. I think we are intelligentsia sitting here. If we start at our level, हम ही घर में जाके अपने छोटी छोटी चीज़ें, बैसाखी, चलो भाई मोहल्ले में सारे इकट्ठे हो गए. इट इज़ बेसिकली हैविंग कम्युनिकेशन विद ईच अदर. आपस में हम अपनी कम्युनिकेशन जारी रखें. आपस में हमारे बच्चे साथ में बैठेंगे एंड वील फाइंड एल्डर विल बी रिस्पेक्टेड. जो वृद्ध आश्रम आजकल खुल रहे हैं क्योंकि बच्चे घर में हैं, टाइम नहीं, वृद्ध आश्रम भेज दो. वृद्ध आश्रम थोड़े से कम होंगे क्योंकि विल बी नोइंग ईच अदर. तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ आज 4-6 दिन छुट्टी थी, घर में बच्चा बैठता है, काम करता है मल्टीनेशनल में, तो फादर भी घर में है, तो 4-6 दिन जब कोई काम नहीं था तो उसे लगा हाँ इंटरनेट भी फेल हो गया, कुछ काम नहीं, टीवी फेल हो गए, तो फादर से फिर काफ़ी गप्पें लगने लगी. तो उसे लगा हाँ फादर तो एक अच्छे इंसान है, तो मैं तो कभी बैठे ही नहीं इनके साथ सारी उम्र क्योंकि टाइम ही नहीं मिला. तो व्हाट आई से, दिस इज आर द ट्रेडिशन, दिस इज द कल्चर. छोटी छोटी चीज़ें इफ़ वी स्टार्ट अप एज ऑफ डेट, हम स्टार्ट करें, एंड आई थिंक दैट विल यूनाइट द कंट्री. इट इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग. हम सभी जब सब इकट्ठे हुए हैं, हमारे आपस में जो मतभेद हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, ऑल विल गो अवे. अदरवाइज ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन दे टेक केयर ऑफ छोटा छोटा सा कोई इशू लेके, रिलीजन का, रीजन का लेके आपस में दे क्रिएट कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और आपस में लड़ाई लगवाते हैं सब कुछ. एंड दैट थिंग कैन गो ओनली इफ वी स्टार्ट celebrating our cultures together. We again bring back to the culture. So I feel, from my angle, cultural security is one part which as of today, which is eroding, and that must be preserved. If we preserve culture, so probably slowly with the smaller groups, the whole nation can be built up. I'll see only after this. Thank you very much.